Okay, good morning everyone. Today we are going to continue with exercise 3.3 of chapter 3 Understanding Quadrilaterals. In the previous class we had discussed till question number 7. Now we are going to solve the remaining questions of this exercise today. Almost all the questions have been done by me during live class or in video, because all the questions are different, so you are requested to solve all the questions once again. That is why you were asked to do same questions in homework notebook also for your practice. Okay, so let us start. We are going to discuss question number 8 first. क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स. अब ये गन्स एंड रन्स नेम इस तरह से दिए गए हैं कि वो गन्स एंड रन्स बन रहा है. The following figures, guns and runs, are parallelograms. So this is given to you in the question that the given figures are parallelograms. तो basically आपको इन questions को solve करने के लिए parallelograms की properties use करनी है. Find x and y. You need to find the values of x and y, and the lengths which are given to you, the unit is centimeter. Okay, so we are going to start with first part. So solution, first part. Over here when you look at the first part, that is guns, ये वाला जो पैरेललोग्राम है हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं. देखिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आपको यहाँ पे आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है. You know the property that opposite sides of a parallelogram are equal. तो उससे क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने की वजह से 3y plus -1 will be equal to 26 and 3x. Please turn off your mics. 3x will be equal to 18. ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे. तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे पहले, since opposite sides of a पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब क्योंकि ये इक्वल होती हैं तो क्या होगा, 3y minus 1 will be equal to 26. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड जो दूसरी इक्वेशंस हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी. 3x will be equal to 18. दोनों एक्सप्रेशंस ये वाली भी इक्वल हो गई. 3x is equal to 18. So we have just used properties of parallelogram, and the property used here is that opposite sides of a parallelogram are equal. So 26 will be equal to 3y plus 1 and 3x will be equal to 18. Now we just need to solve these equations normally. So 3y will be equal to 26 plus 1. That gives you 3y is equal to 27. और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 27/3 and when you solve you get 9. So the value of y is 9. Similarly we will solve for the value of x. So this will give you x is equal to 18/3. So that will give you x is equal to 6 because 3 6 are 18. तो x की वैल्यू आ गई 6. तो हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली है. एंड में आप दोनों वैल्यूज एक साथ लिख देंगे. देयरफॉर x is equal to 6 and y is equal to 9. ये हमारा आंसर हो जाएगा. दिस विल बी द फाइनल आंसर. आपको एंड में सारी वैल्यूज दोबारा एक बार लिखनी है. आई होप द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. इट इज वेरी इजी. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए एक्सप्रेशंस इक्वल रख दिए और नॉर्मल आपने सिंपल इक्वेशंस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लिया है. नाउ विल मूव ऑन टू सेकंड पार्ट. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट. अब इस पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको एक्सप्रेशंस या नंबर्स दिए गए हैं वो डायगोनल्स वाले पोर्शन में दिए गए हैं. दे आर नॉट साइड्स, दे आर नॉट एंगल्स, दे आर पार्ट ऑफ डायगोनल्स. तो आपको याद करना है कि डायगोनल से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की.
So the property was the diagonal of a parallelogram the diagonals of parallelogram, they bisect each other, which means they divide each other into equal parts. तो दोनों diagonals equal parts में divide हो जाएंगे. इसका meaning क्या है कि this part 20 will be equal to y plus 7 and the other part, that is 16, will be equal to x plus y, because both the diagonals are bisecting each other. तो हमें यहाँ पे पहले property used लिखना होगा. So this is second part. So we will write, since diagonals of a parallelogram bisect each other, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इसलिए क्या होगा अब यहाँ पे 20 and y plus 7 they will be equal. y plus 7 is equal to 20 और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगी, y is equal to 16. ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई. अब हमें ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो वी विल स्टार्ट. Here the equation is very simple. Y will be equal to 20 minus 7. So you will get y is equal to 13. So this will be the value of y. Now we need to find the value of x. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम सेकेंड वाली इक्वेशन यूज करेंगे. अब यहाँ आप देखिए x तो हमें नहीं पता है, पर अब हमें y की वैल्यू पता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 13 is equal to 16. Now x will be equal to 16. When 13 goes that side, it will become minus. So the value of x will be 16 minus 3, that is 16 minus 13, that is 3. So we have found both the missing variables. The question was find x and y. Okay. So x is equal to 13. Okay, we can also write centimeter if you want, but if you want to skip that, that is also fine. X is equal to 13. X is equal to 3 and y is equal to 13. So both the values have been found. So this will be the final answer. Always make sure you write the final answer again in the end. Okay, so this is how we solve questions based on properties of parallelograms. Now the next question is also based on properties of parallelograms, but it is based on angles. यहाँ पे हम sides और diagonals की बात कर रहे थे. जो next question है वो angles पे based है. Let us look at that question now. You are supposed to write all this in your classwork notebook. We are moving to question number 9. So here in the above figure, both risk and clue are parallelograms. Find the value of x. Now in this figure there are two parallelograms in the same figure. Risk, so this yellow part I am highlighting, this is a parallelogram. Risk is a parallelogram and the other one is clue. So that will be this pink one. Okay. So these are two parallelograms और ये दोनों ही parallelograms same figure में है और हमें x की value निकालनी है इस question में. Okay. So we are going to observe the figure very carefully and then we will be able to solve it. ठीक है, पहले आप सबको यहाँ पे दिख जाना चाहिए कि दो parallelograms हैं. So what I am going to do is I am going to enlarge the figure little bit. यहाँ पे फिगर को थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि हमें क्लियरली दिख जाए कि हम क्या क्या यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x. यहाँ पे x क्या है, एंगल है. ठीक है, तो हम
दो दो पैरेललोग्राम्स हैं, रिस्क और क्लू, तो दोनों में एक एक करके हम वर्क करेंगे. वी विल वर्क वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट आई एम वर्किंग इन द पैरेललोग्राम रिस्क. अब आप देखिए रिस्क पैरेललोग्राम में अगर मैं सेपरेटली भी ड्रॉ करूं, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है रिस्क, RISK. यहाँ ये एंगल 120 डिग्री है. तो ये जो S पे एंगल बन रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? आई एम सॉरी, दिस एंगल इज नॉट 120, एंगल एट K इज 120. ये एंगल 120 है, तो आप S के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है. तो अगर K 120 डिग्री है तो S कितना होना चाहिए ताकि सम 180 आ जाए? S को 60 होना चाहिए. तो यहाँ ये जो एंगल है, दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, तो सबसे पहले हम रिस्क को यूज करके ये वाला एंगल निकालेंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज द अदर वन, दैट इज क्लू. अब हम क्लू को यूज करके देखते हैं कि उससे हमें क्या मिल सकता है. सो अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ क्लू हियर. ये सिर्फ मैं रफली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ. ओके, CLUE, क्लू. अब ये आपको 70 डिग्री गिवन है एंगल L. तो आप इस E वाले एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं? If this is 70 degree, then angle at E will also be 70 degree. क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें? इसने चालू कर दिया होगा प्रेजेंट. Okay, there was some issue. Let us come back. We are talking about the parallelogram clue. ठीक है, हमने क्लू पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ कर लिया. अब क्लू में आपको एंगल L जो है वो 70 डिग्री ऑलरेडी गिवन है. तो हम एंगल E के बारे में क्या कह सकते हैं? ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पे ये जो E एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. अब आप देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ हमें मिल गया है. आई विल जस्ट शेड इट विद अ वेरी लाइट कलर. ये जो ट्रायंगल है यहाँ, ओके, दिस इज नॉट एट ऑल विजिबल. ये जो यहाँ हमारे पास ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल के हमें 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स पता है. ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और हमें x निकालना है. तो वी कैन फाइंड x यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. तो अगर आपको 2 एंगल्स पता है तो आप थर्ड एंगल अपने आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था सिर्फ कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ठीक है, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू गिव नेम्स टू दीज एंगल्स. ओके, मैं इन एंगल्स का कुछ नाम रखने वाली हूँ ताकि हम बहुत इजीली बोल सके एंगल 160 है, एंगल 270 है. ठीक है, ये हमारी फिगर थी. मैंने इसमें रिस्क और क्लू पैरेललोग्राम्स को शेड किया. इस एंगल को मैं एंगल 1 बोलने वाली हूँ और इस एंगल को मैं एंगल 2 बोलने वाली हूँ. ठीक है, तो अब हम अगर इस तरह से आप कुछ भी नाम रखते हैं एंगल्स का, तो आपको वो फिगर में मार्क करने होते हैं और आपको अपनी आंसर शीट में या नोटबुक में वो फिगर जरूर बनानी होती है. सो द सॉल्यूशन विल गो समथिंग लाइक दिस. इन द सॉल्यूशन वी विल राइट, since
रिस्क इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रिस्क एक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस 120 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसा क्यों, रीजन है बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब है उनका सम 180 डिग्री होता है, इसलिए ये जो 120 डिग्री एंगल दे रखा है और एंगल 1 दे रखा है, ये दोनों एंगल, ये जो मैं पर्पल शेड कर रही हूँ 120 एंड एंगल 1, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं रिस्क पैरेललोग्राम्स के, रिस्क वाले पैरेललोग्राम के, और इसलिए इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं, एंगल 1 आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो हमें एंगल 1 मिल जाएगा 60 डिग्री। इसको हम मार्क कर लेंगे क्योंकि ये बाद में हमें यूज करना है जब हम x निकालना चाहेंगे। एंगल 1 इज 60 डिग्री। अब हमने रिस्क को यूज कर लिया है, अब हम नेक्स्ट पैरेललोग्राम यूज करेंगे, दैट इज क्लू। अब हम फिर से लिखेंगे, सिंस क्लू इज अ पैरेललोग्राम, सिंस क्लू इज अ पैरेललोग्राम, तो अब हमने क्लू में क्या बोला था कि एंगल 2 और 70 डिग्री, ये दोनों पिंक एंगल्स जो मैं शेड कर रही हूँ, ये 70 डिग्री और ये एंगल 2, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंस क्लू इज अ पैरेललोग्राम, एंगल 2 विल बी इक्वल टू 70 डिग्री, और आपको रीजन देना है बिकॉज opposite angles of a parallelogram are, अब यहाँ हम लिखेंगे इक्वल, सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो हमारे पास एंगल 2 भी आ चुका है। अब हमें फाइनली x की वैल्यू निकालनी है, और वो हमने डिस्कस किया ही था कि कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब हम इसको अगर कुछ नेम दे दें, सपोज O बोल देती हूँ मैं इस पॉइंट को, तो EOS एक ट्रायंगल है, और अब हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो आई विल यूज अनदर स्लाइड, सो वी विल राइट नाउ EOS is a triangle, so angle 1 plus angle 2 plus x should be equal to 180 डिग्री। ये कैसे आया हमारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी, और कौन सी फिगर की एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की, क्योंकि अब तो आप क्वाड्रिलेटरल की भी पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ लिखना है ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम इसमें एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू डालेंगे, तो आप देखिए एंगल 1 की हमारे पास वैल्यू थी 60 और एंगल 2 की वैल्यू है 70, तो एंगल 1 60, एंगल 2 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी विल सिंपली सॉल्व इट। अब ये इक्वेशन है, इसको बस सॉल्व करना है। 60 प्लस 70 हो जाएगा 130 डिग्री प्लस x is equal to 180 degree. Please turn off the mic. X will be equal to 180 degree minus 130 degree. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, और हमें यही निकालना था इस पूरे क्वेश्चन में। So this will be the final answer. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है पर डिफिकल्ट नहीं है। पहले हमने रिस्क पैरेललोग्राम यूज किया, फिर क्लू पैरेललोग्राम यूज किया, और हमें एक ट्रायंगल मिल गया, वहां से हमने x की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल ली। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू अ वेरी इजी क्वेश्चन। द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, ज्यादा बड़े नहीं है ये क्वेश्चन। यू आर बेसिकली गोइंग टू अंडरस्टैंड इट क्वाइट इजीली। Okay, so this is the next question. Question number 10. Explain how this figure is a trapezium. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी जैसे लग रहा है,
आपको बताना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम क्यों है, ठीक है। तो पहले हम ट्रेपीजियम वाली शेप की बात कर लेते हैं। ट्रेपीजियम शेप कैसी थी? ट्रेपीजियम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, और वही इसमें पूछा है कि अच्छा अगर पैरेलल हैं तो कौन सी हैं। अब देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स का और मतलब किसी का भी यही मन करेगा कि फिगर में तो हमें दिख ही रहा है कि एम एन और के एल पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, यही आंसर लिख देते हैं और लिख देते हैं इट इज अ ट्रेपीजियम। पर आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वर्ड एक्सप्लेन, तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपका क्लास 7 का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए यहाँ पे एम एन एक लाइन है, के एल एक लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन एम एल है दैट इज अ ट्रांसवर्सल। तो 180, 100 और 80 इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 180 मिलता है। और ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, या फिर जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहा करते थे। तो आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि अगर दो लाइंस होती हैं और उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो मतलब लाइंस पैरेलल हैं। तो उसकी हेल्प से हम बोलेंगे कि एम एन और के एल पैरेलल लाइंस हैं, और क्योंकि वो पैरेलल है अब यहाँ से हमें ये आंसर मिल जाएगा, और क्योंकि वन पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल हो गया तो ये ट्रेपीजियम भी है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसको लिखने का तरीका हमें अच्छे से सीखना है। सो वी आर गोइंग टू write it nicely in the solution. What we will write is, we will write you can draw this if you want. In the answer we can draw this nm and kl, and we will draw only this part. This is 100, this is 80. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ml is a transversal for nm and kl. यहाँ पे ml जो है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है किसका? nm और kl का। तो ट्रांसवर्सल होने की वजह से अब हम लिखेंगे एंड 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे हम लिखेंगे these are co-interior angles, co-interior या फिर angles, interior angles on the same side of transversal. These are co-interior angles. So NM is parallel to KL, क्योंकि co-interior angles का सम अगर 180 होता है तो लाइंस पैरेलल हैं। तो ये हमें सेकेंड पार्ट का आंसर मिल गया। इसमें पूछा था विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, तो ये हमने बता दिया। और क्योंकि एक साइड पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। देयरफॉर KLMN इज अ ट्रेपीजियम। और रीजन क्या है? रीजन में लिखेंगे बिकॉज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। सिर्फ एक पेयर पैरेलल होना काफी होता है, हमें ज्यादा नहीं बताना है कि दूसरा पेयर है या नहीं है। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन ही यही होती है कि सिर्फ एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन शो दैट KLMN इज अ ट्रेपीजियम। अब ये चैप्टर्स पढ़ते हुए आपको ये चैप्टर स्टडी करते हुए आपको रियलाइज हो रहा होगा कि क्लास 7 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइंस एंड एंगल्स के और ट्रायंगल्स के, वो बार बार यहाँ यूज हो रहे हैं। सो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो वो कॉन्सेप्ट्स भूल गया है, प्लीज रिवाइज कीजिए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है आपको? फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। ये जो स्मॉल m होता है इसका मतलब बस यही होता है मेजर निकालना है, यानी कितने डिग्री का है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि व्हाट इज दिस। आपको एंगल C निकालना है इस फिगर में। अगर AB और DC पैरेलल है तो AB और DC यानी कि ये साइड्स AB एंड DC दे आर पैरेलल, यू हैव टू फाइंड एंगल C।
अब देखिए पीछे जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो ये इनका एक ट्रांसवर्सल है और इसलिए को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए, तो ये 120 डिग्री और एंगल सी मिला के 180 बनाना चाहिए और इसलिए सी हो जाएगा 60 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए अगर लाइंस पैरेलल होती हैं। तो वही हम यूज करेंगे यहाँ, यही कॉन्सेप्ट, इसको ठीक से लिखेंगे सॉल्यूशन में। वी कैन ड्रॉ द फिगर अगेन। दिस इज DC and this is AB, and this is okay, there is some issue, please wait. ओके अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी एंड सी डी पैरेलल दिए हुए हैं हमें। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सी बी, दैट विल बी अ ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ लिखेंगे सी बी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ, अब हम यहाँ पे हम पैरेलल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पैरेलल आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है, पैरेलल साइड्स DC एंड AB। अब पैरेलल साइड्स की अगर ट्रांसवर्सल है CB तो क्या होगा, देन को इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी सप्लीमेंट्री। ये आप क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आ जाएगा, सो को इंटीरियर एंगल्स में क्या क्या है हमारे पास, यहाँ ये एंगल है, एंगल B 120 डिग्री और एंगल C है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो एंगल here 120 प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यही दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास एंगल C आ जाएगा, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो यू विल गेट एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। That will be the final answer. So students, that was all for today's class. जो next question है इसके बाद सिर्फ एक ही question बचता है exercise में, I will give that to you as homework. That's all. Now I am going to just talk to you for a while. Don't leave the meeting.